Good morning, dear students. In this class, we are going to study about graphical representation of motion. We are studying chapter 8, Motion, class 9 science. Motion. Okay, previously we have studied distance, displacement, velocities, average velocities, acceleration. Okay, and we have solved some numericals. In this class, we are going to study motion with help of a graph. Okay. So graph, I hope you are familiar with graph. In mathematics, in other subjects, you have also studied what is a graph. Okay. So graph is a method, convenient method, easy method to study anything. Okay. So we will study motion, different quantities of motion by graph. ठीक है, ग्राफ को जब हम स्टडी करते हैं तो उसको स्टडी करना बहुत इजी होता है. ठीक है, in spite of instead of some quantities, numbers, if we plot those numbers on a graph, that will be easier for us to study and understand. Okay, for example, आपने बहुत सारे ग्राफ्स देखे होंगे. कोई क्रिकेट मैच चल रहा है, उसमें भी जब क्रिकेट मैच के बीच में दिखाते हैं, कुछ ग्राफ्स दिखाते हैं, रन रेट दिखाते हैं. इस तरीके से वो इजी हो जाता है कोई भी डेटा को स्टडी करना. Okay, so you know that basic concepts of a graph, that we take two axes. Okay, generally we take two axes, two lines. Horizontal line को हम x axis बोलते हैं and vertical line को y axis बोल देते हैं. ठीक है, x axis, y axis. So in a graph we study two quantities. In a graph we can study two quantities and their relationship with each other, right? So with the help of a graph we can study two quantities, two physical quantities, any quantities, and their relationship with each other. Okay, and also we can easily study these quantities and we can also find out value of other quantities. Okay, so x-axis, y-axis. On one axis we can put any values, 2, 4, 6, 8. Okay, the difference between them is same, 2, 4, 6, 8. On y-axis we also put some other numbers, 5, 10, 15, 20. Okay, so what is the value of x at 6? This is 6. Okay, this is 8. Value of x at this point is 8. Value of y at this point is 20. Value of y at this point is 10. Okay, so y and x can be any physical quantity, anything which we are studying. Okay, so if we take one point, ठीक है, so in a graph what do we actually do? We study one quantity with respect to other. For example, value of y with respect to x at 6. Okay, when value of x is 6, then if value of y is 50, then how will you represent that relationship? Value of y with respect to 6 is 15. Okay, so value of x is 6 and y is 50. Okay, so that's how we can represent any number on the graph. Okay, so for example, anyone says to you that value of x is 8 and with respect to that value of y is 50, then we can represent that point. How can we represent that point? Okay, so x can be anything. You can take time. X may be time. Okay, so at 8 seconds value of y is 50, then how will you represent? So a value of 8 is this much is 8 and this much is 50. So how will you represent? This is 8 and this is 50. Okay, so you will draw two lines like this and it will represent 8 and 50. Okay, this horizontal line represents value of x and this vertical line represents value of y. So horizontal value is x-axis, x, and vertical value is y.
Okay, so this line represents x, which is 8, and this line 15. Okay, this is very simple. You also know about this. So if value of y at 6 seconds is 10, then how will you represent this point? You can easily do this in your rough notebook. How will you represent 6 and 10? 6 is here, okay, here, and 10 is here. 6 जो है यहाँ तक होगा, 6 में भी here, तो आपको पता है 6 की जो वैल्यू होगी वो यहाँ कहीं होगी, ठीक है, इस लाइन पर कहीं होगी 6 की वैल्यू, और जो 10 की वैल्यू है वो इस लाइन पर कहीं होगी। जहां पर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करनी है वो पॉइंट कौन सा है? 6 एंड 10। वेरी सिंपल। ओके, सो सिमिलरली we can find many points. Okay, we can find out many points and draw a line. Okay, for example, value of y at x equal to 2 is 5, then 4 10, then 6 15, and then 8 20, and in this way when we join these points we get a straight line. Okay, this is a rough diagram. When we join these lines we get a straight line. So by this graph we can easily study the values. Okay, it will be a straight line. ठीक है, तो इससे आपको क्या हेल्प मिलती है? आप इसको ग्राफ को देख कर ही आप समझ सकते हैं दिस इज अ लीनियर ग्राफ, मीन्स वैल्यू ऑफ x इज इंक्रीजिंग इन प्रोपोर्शनल टू y. ठीक है, जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y बढ़ रहा है. ठीक है, सो दैट इज लीनियर ग्राफ. और जो वैल्यूज आपको नहीं पता थी, आपको सिर्फ पता है 2 5 और 4 10 ऐसे पता है आपको, लेकिन जो वैल्यूज आपको नहीं पता थी वो भी आप ग्राफ की हेल्प से निकाल सकते हैं. आपको मान लीजिए ये पॉइंट चाहिए, वैल्यू ऑफ y एट 3 चाहिए, तो 3 इज हियर एंड सो वैल्यू ऑफ y विल बी अबाउट 7.5. okay, but if you have to find out value of y at x equal to 3, then we can find out value of y with respect to 3. Okay, we will draw a line like this and find out this point. If this is 3, then this is 7.5. Okay, that's how we can find out any value of x and y. Okay, this is a graph of these numbers. ये हमारा डाटा है और ये ग्राफ है. तो आप देख सकते हैं इसको पढ़ने से इजी है कि हम ग्राफ को ही इजीली स्टडी करें. ठीक है, ग्राफ से हमें सभी वैल्यूज मिल जाएंगी और इसको पढ़ने में हमें टाइम लगेगा, लेकिन ग्राफ से हम जल्दी से कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ वी कैन आल्सो फाइंड अदर क्वांटिटीज व्हिच आर नॉट गिवन इन द ग्राफ. ठीक है, अगर ग्राफ के अंदर कोई तीसरी क्वांटिटी जो नहीं दी हुई है वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. वो कैसे? देखिए, सपोज दैट वी आर गिवन, we have to study relationship between distance and time. okay, time and distance के बीच में हमें जो है relationship को study करना है. ठीक है, so this is time and this is distance. तो ये कौन सा ग्राफ बन जाएगा? This will be called distance time graph. okay, it will be called distance time graph because we are studying distance and time with respect to each other. Okay, this is distance time graph. Okay, so value of distance at 2, this is time and this is distance. ठीक है, टाइम सेकेंड्स में है, डिस्टेंस मीटर्स में. ओके, सो टाइम 2 seconds में डिस्टेंस कवर्ड इज 5 meters, 4 seconds में डिस्टेंस कवर्ड इज 10 meters, 6 seconds में डिस्टेंस कवर्ड इज 15 meters, एंड सो ऑन. ओके, दिस इज द डाटा की. ओके, सो वी हैव प्लॉटेड दिस डाटा ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम ऑन दिस ग्राफ एंड वी गेट अ स्ट्रेट लाइन. इस डाटा को ध्यान से देखिए. ठीक है, एंड फाइंड आउट इफ दिस इज यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन. पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट दिस कि यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन. व्हेन एनी मोशन इज यूनिफॉर्म, अ मोशन इज यूनिफॉर्म, यू हैव स्टडीड
दैट इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 2 सेकेंड्स में उसने 5 मीटर्स कवर किया, फिर 4 में 10, 6 में 15। तो जो डिफरेंस है वो टाइम का भी सेम है 2 और डिस्टेंस का भी कितना डिफरेंस है, सब में 5 डिफरेंस है, राइट। 5 डिफरेंस इनमें है, 2 डिफरेंस इनमें है। तो इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, राइट। And that is why if we plot this on graph we get a straight line। ठीक है, this arrow means आगे तक है जहां तक भी मोशन चल रहा है। ठीक है, so it means that graph of a uniform motion is straight line, right? If an object is in uniform motion, its graph will be, the nature of graph will be a straight line or लीनियर ग्राफ। तो लीनियर ग्राफ का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ। सो नेचर ऑफ ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन। ओके, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अगर यही मोशन नॉन यूनिफॉर्म होता, नॉन यूनिफॉर्म कैसे होता ये मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन देन ग्राफ वुड बी लाइक दिस। ऐसा कैसे होता देखिए, read this data and find out if it is non-uniform। yes, because देखिए 2 seconds में 3 meters, 4 अगले 2 seconds में 5 meters, ठीक है, फिर टोटल 6 seconds में 12 meters। ओके, so डिस्टेंस है वो अनइक्वल है। ठीक है, पहले 2 meters ट्रेवल किया, फिर 7 meters और आगे ट्रेवल किया, फिर 8 meters और आगे ट्रेवल किया। ठीक है, टाइम 2 seconds है लेकिन डिस्टेंस कवर जो है वो अलग अलग है। 2 seconds में, पहले 2 seconds में 2 meters, अगले 2 seconds में 7 meters, next 2 seconds में 8 meters। So if an object covers unequal distances in equal intervals of time then it is non-uniform motion। और जब when we plot these values here we will get a graph like this। okay, this graph may be of any shape। okay, it will not be linear, straight line नहीं होगा, but किसी भी shape में हो सकता है। ठीक है, तो in this case it is like this। okay, so nature of graph of non-uniform motion is non-linear। nature of graph for non-uniform motion will be non-linear, means not a straight line। वो कैसे भी हो सकता है, ऐसी शेप हो सकती है, ठीक है, ऐसी भी शेप हो सकती है, ऑलराइट, इस तरीके से भी शेप हो सकती है, कोई भी शेप हो सकती है, बस स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। So this is the graph for non-uniform motion। okay, so आप ग्राफ को ही देखकर पता लगा सकते हैं कि मोशन का नेचर कैसा है। You don't need to study values। आपको एक ग्राफ दे देंगे और पूछेंगे कि इसका मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म, यू कैन इजीली टेल कि नॉन लीनियर है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। ठीक है, नाउ आई टोल्ड यू दैट हम इन 2 क्वांटिटीज के अलावा किसी थर्ड या फोर्थ क्वांटिटी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। वो कैसे होगा, देखिए डिस्टेंस आपने पढ़ा है, टाइम आपने पढ़ा है, इसके अलावा आपने कौन सी क्वांटिटी पढ़ी है, आपने स्पीड पढ़ा है, एक्सेलरेशन पढ़ा है, वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, उसको समझने के लिए आप जनरली ग्राफ में होता क्या है, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं वो देखिए। ये क्या है, टाइम एक्स एक्सिस है और डिस्टेंस वाई एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। So how can we find speed from distance time graph? डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आपको स्पीड कैसे मिलेगी, देखिए उसके लिए यू शुड नो अबाउट स्लोप ऑफ द ग्राफ। स्लोप ऑफ द ग्राफ वो होता क्या है, ये आपका स्ट्रेट लाइन जो है ग्राफ है, लीनियर ग्राफ है, तो व्हाट इज स्लोप, स्लोप ऑफ एनी ग्राफ। ठीक है, स्लोप का जनरल मीनिंग क्या होता है, व्हाट डज स्लोप एक्चुअली मीन। स्लोप का मतलब होता है ढलान, ढाल, कि ये जो है कितना बेंट है। ठीक है, ये जो ग्राफ है वो कितना बेंट है, दैट इज इसका मीनिंग होता है स्लोप। ओके, सो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है मैथमेटिकली,
द फॉर्मूला फॉर स्लोप इज वैल्यू ऑफ y अपॉन वैल्यू ऑफ x, y अपॉन x। सो जितना ज़्यादा y होगा उतना ज़्यादा स्लोप होगा, ठीक है। तो ये देखिए, एक ये ग्राफ है और एक ये ग्राफ, ठीक है। सो इसमें आप स्टडी कीजिए, तीनों लाइंस में स्लोप सबसे ज़्यादा किसका है। वीडियो को पॉज करें और देखें कि स्लोप सबसे ज़्यादा किसका है। जिसकी y वैल्यू ज़्यादा होगी उसका स्लोप सबसे ज़्यादा होगा। मीन्स जो जितना ऊपर होगा, y यहाँ है ना, ठीक है, तो y की वैल्यूज जिसकी सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे ऊपर ग्राफ होगा। फॉर एग्जाम्पल हम 4 पॉइंट लेते हैं, 4 पॉइंट की रिस्पेक्ट में यहाँ इस ग्राफ में y की वैल्यू है 10, इस ग्राफ में वैल्यू है 6 और इसमें है 3। तो किसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है? 10, इसकी थर्ड लाइन की। मीन्स जो ग्राफ जितना ऊपर है उसकी y की वैल्यू सबसे ज़्यादा है और उसका स्लोप भी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ स्लोप, ठीक है। एंड दिस फॉर्मूला इज y अपॉन x। या फिर इफ यू अगर आपको दो पॉइंट्स के बीच में अगर आपको स्लोप निकालना है तो इट विल बी y2 माइनस y1 divided by x2 minus x1. 2 1 means there are two values of y and two values of x. ओके, आपको स्लोप मान लीजिए 6 8 के बीच में निकालना है। 6 और 8, 6 कहाँ पर है? 6 इज दिस एंड 8 इज दिस। इन दो पॉइंट्स के बीच में ही आपको स्लोप निकालना है। तो इसकी रिस्पेक्ट में y की वैल्यूज और y की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे एंड वी विल पुट वैल्यूज हियर, y2 minus y1 x2 minus x1. फॉर एग्जांपल, वैल्यू ऑफ y at 6 is 15 and 8 is 20, then what will be the slope of the graph between 6 and 8? 6 और 8 सेकंड्स के बीच में स्लोप का ग्राफ का स्लोप कितना होगा? y2 minus y1 20 minus 15 and 8 minus 6. ओके, सो 5 divided by 2, 2.5 इसका जो है स्लोप होगा, ठीक है। सो हम स्लोप से क्या कर सकते हैं? वी कैन फाइंड आउट स्पीड विद द हेल्प ऑफ स्लोप। अच्छा, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? स्पीड इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस टाइम। तो देखिए, डिस्टेंस क्या है? y है और टाइम क्या है? x है। y अपॉन x क्या होता है? स्लोप। ओके, y अपॉन x स्लोप होता है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? स्पीड, राइट। स्लोप जो है वो भी क्या है? y अपॉन x, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और स्पीड भी क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। दैट इज वाई स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ स्पीड, ठीक है। द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स अस द वैल्यू ऑफ स्पीड, ओके, बिकॉज डिस्टेंस इज y एंड टाइम इज x, ओके। हाँ, जनरली हम डिस्टेंस y में ही लेते हैं, टाइम x में लेते हैं। इन एनी केस अगर आपको टाइम ऊपर दिया जाए, डिस्टेंस नीचे दिया जाए, तो स्पीड की वैल्यू क्या होगी? तो स्पीड कैसे फाइंड आउट करेंगे? कैन यू थिंक अबाउट दिस? ऑब्वियसली देन स्पीड विल बी अपोजिट ऑफ स्लोप, ठीक है। अगर टाइम ऊपर है, स्पीड डिस्टेंस नीचे है, तो स्लोप क्या होगा? टाइम अपॉन डिस्टेंस। टाइम अपॉन डिस्टेंस क्या होता है? 1 अपॉन स्पीड। इसका मतलब होगा जो स्पीड और जो स्लोप है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। अगर x और y हम इंटरचेंज करते हैं तो स्पीड और स्लोप भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो जाएंगे। लेकिन जनरली डिस्टेंस हम ऊपर लेते हैं, टाइम नीचे लेते हैं। सो स्लोप ऑफ द ग्राफ इज इक्वल टू स्पीड, ठीक है, स्पीड ऑफ द मोशन। सो इन दिस वे यू कैन सी दैट वी आर स्टडीइंग मोशन विद रिस्पेक्ट टू विद हेल्प ऑफ अ ग्राफ। हमें कोई डाटा की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ ग्राफ से ही सब फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इफ यू आर आस्क्ड दैट दिस ग्राफ इज गिवन टू यू, ओके, ये ग्राफ आपको दिया होगा और इस ग्राफ को देखकर आपको बताना है कि इसका स्लोप कितना है, ठीक है। व्हाट इज इट्स स्लोप? या फिर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि फाइंड द स्पीड ऑफ दिस मोशन, दिस टाइप ऑफ मोशन विद हेल्प ऑफ दिस ग्राफ। ओके, सो हाउ विल यू फाइंड आउट? इफ वो मोशन है तो स्पीड हमेशा सेम होगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ इस टाइम के बीच अलग होगी, टोटल टाइम में अलग होगी, नहीं। यूनिफॉर्म मोशन है तो स्पीड हर जगह सेम होगी। तो आप किसी भी दो पॉइंट को लेकर आप स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। टू फाइंड स्पीड वी हैव टू फाइंड स्लोप ऑफ द ग्राफ एंड स्लोप ऑफ द ग्राफ इज इक्वल टू, तो इट विल बी, स्पीड विल बी
क्या होगा, स्लो, ओके, राइट, एंड इट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1, ठीक है। आप कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं, दो वैल्यूज 6 8 ले सकते हैं, x की वैल्यू 6 और 8 ले सकते हैं, y की वैल्यू 15 20 होनी चाहिए, बस इक्विवेलेंट वैल्यूज होनी चाहिए, ठीक है। 4 के जो रिस्पेक्ट में है, 6 के रिस्पेक्ट में है, वो आपको वैल्यू y की लेनी है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल आई टेक 6 एंड 8 पॉइंट्स। अब मुझे 6 सेकेंड्स और 8 सेकेंड्स के बीच में स्पीड निकालनी है, ओके। सो पहले हमें 6 के रिस्पेक्ट में y की वैल्यू कितनी है 15, 8 के रिस्पेक्ट में 20, ओके। इसको हम लिख सकते हैं 6 15 एंड 10 20। तो सिंपल है, y2 माइनस y1 20 माइनस 15 अपॉन 10 माइनस 6, जैसा कि अभी हमने किया था। या फिर कोई भी हम दूसरी वैल्यूज भी ले सकते हैं, हम 0 को भी एक इक्विवेलेंट मान सकते हैं, 0 0। दिस इज द ओरिजिन, ओरिजिन जहां से ग्राफ स्टार्ट होता है। यहाँ पर x और y दोनों वैल्यूज 0 होती है, तो x और y दोनों वैल्यूज 0 होंगी, तो ये क्या बन जाएगा y अपॉन y2 अपॉन x। टेक ओरिजिन, ठीक है, एज पॉइंट, एज अ पॉइंट, देन इट विल बी y2 अपॉन x2, okay, and any value of y we can take 20 and 8, that will be 5 by 2 2.5 मीटर पर सेकेंड। यही वैल्यू हमने इससे पहले फाइंड आउट की थी, ठीक है। सो इट मींस स्पीड ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। स्पीड ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज कांस्टेंट एंड इन दिस केस इट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। आप x और y की कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं, 0 0 भी ले सकते हैं, 2 5 4 10 6 15, जो भी x और y की रिस्पेक्टिव इक्विवेलेंट वैल्यूज हैं वो हम ले सकते हैं और इस तरीके से स्पीड निकाल सकते हैं, ओके। इफ आई आस्क यू कि इफ एनी ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, एनी ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, देन व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कोई ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है और रेस्ट में रखा हुआ है, तो उस केस में ग्राफ कैसा होगा, ड्रॉ योरसेल्फ एंड देन सी। देखिए, रेस्ट में है मींस डिस्टेंस चेंज नहीं होगी, डिस्टेंस वही रहेगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट 15 मीटर्स पर है तो वो 15 मीटर्स पर ही रहेगा, टाइम बढ़ता रहेगा, टाइम तो कभी रुकता नहीं है, टाइम चलता रहता है। और अगर आप बैठे रहोगे तो बैठे रह जाओगे, ठीक है। तो अगर टाइम आगे बढ़ता रहेगा 2 4 6 8 10, टाइम चला जाएगा, ठीक है, 2 महीने 4 महीने। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे, उसी पोजीशन पर रहोगे, तो उसी पोजीशन पर रह जाओगे। इसलिए आपका ग्राफ लीनियर होना चाहिए, ऐसा ग्राफ होना चाहिए आपका, आपको एक जगह पर नहीं रहना है, ठीक है। इस तरीके का ग्राफ आपका नहीं होना चाहिए आपकी स्टडीज में, क्योंकि ये ग्राफ किसका है, रेस्ट। दिस इज द ग्राफ ऑफ रेस्ट एंड यू डोंट हैव टू रेस्ट, you have to study, you have to continue, you have to keep walking, so your graph should be like linear graph, okay। so ये समझ आया ना, रेस्ट में क्यों है, क्योंकि टाइम बढ़ता रहेगा लेकिन पोजीशन वही है 15 मीटर्स। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ रेस्ट, you have to carry on, you have to keep moving, so graph should be like this, हमेशा ऊपर ऊपर आगे आगे, टाइम भी बढ़ता रहे और आप भी आगे बढ़ते रहे इस तरीके से, ठीक है। सो दिस इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसका ग्राफ आपको पता है, यूनिफॉर्म मोशन का पता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का भी पता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसा हो सकता है, कभी स्पीड ज़्यादा हो कभी कम हो, या फिर स्पीड बढ़ती जाए, इंक्रीज होती जाए, एक्सेलरेटेड मोशन, राइट। आपकी स्पीड कॉन्टिन्यूसली बढ़ती जा रही है, पहले 2 सेकेंड्स में आपकी स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड, अगले 2 सेकेंड्स में आपकी 6 हो गई, फिर 10 हो गई, ठीक है। स्पीड आप बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में ग्राफ कैसा होगा, अभी आपने ड्रॉ किया था, एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ होगा, डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा। एक्सेलरेटेड मोशन का क्या मतलब है, कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना। तो जो ग्राफ होगा वो डिस्टेंस की तरफ, इस तरीके से डिस्टेंस की तरफ जो है बेंड होगा, ठीक है। दैट इज एक्सेलरेटेड मोशन। दूसरा मोशन होता है डिसेलरेटेड मोशन, ठीक है। डिसेलरेटेड मोशन मतलब, डिसेलरेशन आपने पढ़ा है, डिसेलरेशन आपने पढ़ा है मतलब कि जो स्पीड है वो कम होती जा रही है टाइम के साथ, ठीक है। जैसे जैसे आप नज़दीक आते जा रहे हैं अपनी मंजिल के, जो टाइम, जो आपकी स्पीड है वो कम होती जा रही है, ठीक है। तो उस केस में आपका जो ग्राफ कैसा होगा, वो आपका ग्राफ
डिस्टेंस की तरफ नहीं, टाइम की तरफ ज़्यादा होगा, क्योंकि टाइम ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है इंस्टीड ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो आप रेस्ट पर हैं। ठीक है, अगर आप एक स्पीड से काम कर रहे हैं तो आपका ग्राफ लीनियर है। अगर आप अपनी इम्प्रूव कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, आप अपनी स्पीड लगातार बढ़ा रहे हैं, आप अपना काम लगातार बढ़ा रहे हैं, स्पीड तेज कर रहे हैं, तो उसका ग्राफ डिस्टेंस की तरफ, वाई एक्सिस की तरफ होगा। ठीक है, अगर आप धीरे धीरे ढीले होते जा रहे हैं, आपका जो है स्लो होते जा रहे हैं आप, तो ये ग्राफ जो है टाइम की तरफ होगा। तो ये रेस्ट का ग्राफ है, बीच वाला स्ट्रेट, ये स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन, और इधर और उधर या किसी और तरीके से ऐसा भी हो सकता है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होगा। ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स, ऑल दीज 4 केसेस। ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट एट ए, इस अगर एक ये लाइन ए है, ए में ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, ये लाइन बी है, तो बी का मतलब है यूनिफॉर्म मोशन, बाकी नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसी भी तरीके के हो सकते हैं। ये जो लाइन है, इसमें कोई जो है एक्सेलरेशन या डिक्सेलरेशन नहीं है, वो कभी एक्सेलरेट हो रहा है, कभी डिसेलरेट हो रहा है, तो ग्राफ जिगजैग लाइन है। ठीक है, बाकी ये एक्सेलरेटेड मोशन है और ये डिसेलरेटेड मोशन, दैट दीज आर द डिफरेंट ग्राफ्स। बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ है, यूनिफॉर्म मोशन, वही आपको अच्छे से समझना है। ओके, अब तक आपने पढ़ लिया है कि डिस्टेंस टाइम की ग्राफ क्या होता है, ग्राफ में हम करते क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करते हैं, नेचर अलग अलग मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या होता है, अलग अलग मोशन के टाइप का नेचर क्या होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, और अगर स्ट्रेट लाइन है तो हम उसके स्लोप से कौन सी क्वांटिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये सब आप कर चुके हैं अभी। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो रिवाइंड करके देखिए आप, नहीं तो डाउट क्लास में भी आप यू कैन आस्क एनीथिंग।